A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson from our literature portion, and that is the chapter number 5, that is Footprints Without Feet. Right? This is also the name of our book, and the both of these name are having the same complexion, and this very name has been given to your book. Why? Because this is a very futuristic name and it involves some of the techniques which can be related to the future, but there is no common features among both of these to give the name of the book and also to indulge this very name in a lesson. So but it has some of the significances which can be occurred by our CBSE, and all these things has been compiled in this lesson. Now let's get started with this lesson, and we will find out that this very lesson, that is Footprints Without Feet, has been written by H.G. Wells, whose full name is Herbert George Wells. So this article focuses on the Footprints Without Feet summary, and if I will say some of the few things about this story, that it is an interesting story about a scientist named Griffin and his rare formula of invisibility. So here basically he developed a drug which made his body invisible, but he can be felt physically, right? Then he misuses his power to steal money, clothes, food. Because of all these stealing things and because of all this theft, he found himself in difficulties, and he always you can say persuaded by the people, and people were skeptical about him wherever he go. And there is a kind of series of incidents in this lesson we will discuss here, which will just happen throughout the you can say chapter of this particularly about the scientist. So basically, if I'll talk about the plot, I have just told you here about the plot, but the story prevails like that this is a quite an interesting story about a scientist like named Griffin, which I just told you. He had been finding many of the things, right? But we also know that he can also be touched and felt physically, because he felt he gulped some of the drugs and become invisible, but he accidentally stepped in mud. So whenever when he just accidentally stepped in mud, and he was got first seen by two young men who followed his footprints till it became faint. So this is the starting of our lesson. Here we come to know that the two boys started in the surprising of the fresh muddy imprints of the pair of bare feet. What are barefooted? What was a barefooted man doing on the steps of house in the middle of the London? And where was the man? यहाँ क्या है कि हमारा साइंटिस्ट जो इनविजिबल हो चुका है, अब उसके जो पैर हैं, उनके पैरों के जो निशान हैं वो बन रहे हैं, वो क्योंकि वो किसी मड से गुजरा हुआ है, और जैसे ही वो क्योंकि नंगे पैर अगर वो कुछ भी क्लॉथ अपने ऊपर डालता है तो वो क्लॉथ दिख जाता है, इसलिए उसको बेयर फुट या यू कैन से बेयर फुट बॉडी रहना पड़ता है ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। वो क्यों ऐसा रह रहा है, वो क्यों क्लॉथ नहीं पहन पा रहा है, या फिर क्यों वो ड्रेसअप नहीं कर पा रहा है, हम उसके रीज़न सारे इस लेसन में पता लगाएंगे। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट स्टैंजा। हियर सेज द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो बच्चे हैं, यू कैन आल्सो कंसिडर दम एज यंग बॉय और द टीन बॉयज। सो दिस इज स्टार्टिंग सरप्राइज। वो कोई सरप्राइज तरीके से देखते हैं कि बिल्कुल एक फ्रेश मड से, यानी कि कीचड़ से कुछ प्रिंट्स हैं, वो भी यू कैन से बेयर फुट, नंगे पाँव के, वो चलते हुए जा रहे हैं, यानी उन्हें निशान दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग द स्टेप ऑफ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। नाउ ये जो टाइम है वो है विंटर का, राइट? अब विंटर में क्या है कि कोई भी नंगे पैर चलने की हिमाकत तो कर नहीं सकता, अगर कर भी रहा है तो लंदन के मिड में क्या करेगा। दिस वर द क्वेश्चन विच वाज जस्ट रेज्ड इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टू बॉयज। एंड वेयर वॉज द मैन? वो पूछते हैं कि जो भी चल रहा था वो है कहाँ। एज द गेस्ट, वो उनको घूरते रहे, गेस्ट मतलब होता है घूरना। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। हियर द सेकेंड यू कैन से in the second stanza of the first line here paragraph, as they gazed a remarkable sight met their eyes, a fresh footmark appeared from nowhere. अब जो उनको एक जो फ्रेश फुटमार्क दिख रहा था वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल धुंधला हो जाता, फेंट हो जाता, क्योंकि वो उसको फॉलो करते करते चीज़ें
वो कहाँ तक आप मड वाले पैर लेकर जा सकते हो, उनके पास चिन्ह जो है कहीं तो जाकर ख़त्म होते हैं, राइट। सो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, वो फिर भी उस फुटप्रिंट्स को जहाँ तक हुआ उसको फॉलो करते रहे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स। अब वो क्या है, जो स्टेप्स हैं वो घटते जा रहे हैं, उनकी जो छाप है वो घटती जा रही है, और वो किस तरफ जा रहे हैं, स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज़ फॉलो, फिर भी उसको फॉलो कर रहे हैं। फैसिनेटिंग, इट सीम्स टू बी लाइक दैट, वो इंचेंट हो गए हैं, वो मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें पता ही लगा ना कि वो है कौन। अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, वो तब तक उसका पीछा करता रहे जब तक वो फेंट यानी कि बहुत ही धुंधला या फिर बिल्कुल ख़त्म ना हो गया हो, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। ऑफकोर्स आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके पैर गीले हैं तो आप कितनी दूर तक उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी वैसे ही बात है। तो एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर आपके जो फुटप्रिंट्स हैं, इंप्रेशंस हैं, वो फेंटर हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे बिकम डिसअपियर। द सेम थिंग हैपन टू दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट, and all two of the boys were amazed and surprised at this very incident. Then the explanation of the mystery was really very simple enough. वैसे इसकी जो ये मिस्ट्री है कि वो फुटप्रिंट्स किसके थे, वट आर वेदर वो ऐसे क्यों चल रहा था, वाई ही वॉज बेयर फुटेड एंड वाई ही वॉज जस्ट इन द मिडल ऑफ द लंडन, इसकी एक्सप्लेनेशन है और वो काफ़ी सिंपल है। द बेलविडर बॉयज़ had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो ये एक दो सरप्राइज जो बच्चे थे उसको फॉलो करते हैं, वो उसके उन्हें पता लगता है कि एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी ह्यूमन बॉडी यानी अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लिया, और उसका साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। यहाँ पे पता चलता है ग्रिफिन किसका नाम था, साइंटिस्ट का। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। H.G. वेल्स हमेशा जो इसका राइटर है वो हमेशा अपनी राइटिंग्स में एक ऐसी टेक्निक डालता है जो फ्यूचर से रिलेट करती है, जो हुई नहीं है, बट ही कैन इमेजिन ऑल दिस थिंग्स एज टू बी ट्रू। सो उसने ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के तौर पे उसने एक कैरेक्टर के यू कैन से को और सारे एक्सपेरिमेंट्स दे दिए हैं कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता रहता था। उसको मानना ये था कि हम किसी भी तरीके से कोई तो ऐसा ड्रग्स होता है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने बहुत रेयर ड्रग्स जो है वो गटक लिए। स्वेलो मतलब होता है जस्ट टू यू कैन स्वेलोड अप यू टू टेक इनसाइड योर थ्रोट, इट मीन्स गटकना। हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, अब जैसे उसने स्वेलो अप किया उन ड्रग्स को वैसे ही उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। तो इट आल्सो रिमाइंडेड एज सॉलिड एज ग्लास, बट उसका जो टच था वो फिजिकली काफ़ी सॉलिड था, राइट। इसका मतलब क्या है, वो हर एक सेंस को सेंस कर सकता है। इट मीन्स वो हीट, कोल्ड, एयर, एवरीथिंग ही कैन सेंस, राइट। अब ऐसा नहीं था कि वो दुनिया में एयर की तरह ही एयर में मिल गया हो, नहीं। ही वॉज इनविजिबल बट ऑल दो ही वॉज अ मैन हु कैन फील ईच एंड एवरीथिंग। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट रहा होगा, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन को हमेशा कानून तोड़ने वाला इंसान समझा जाता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू एजेक्ट हिम, वो उसका जो लैंडलॉर्ड सा मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था, वो हमेशा उसको निकालने की बात करता था, उसको घर से बाहर या बेघर करने की कोशिश करता रहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, अब इन रिवेंज लेने में ग्रिफिन ने बिल्कुल पीछे हाथ नहीं किया, उसने उसके घर को आग लगा दी। सो ये पहला इंसिडेंट है कि वो बिल्कुल लॉलेस है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब अगर वो क्लोथ पहनता तो ऑफ कोर्स उसकी जो बॉडी है उस पर वो क्लोथ अलग से दिखते और अलग से पता चल जाता। तो उसने क्या किया, इन पुलिस के झंझटों से बचने के लिए उसने सारे क्लोथ्स जो है वो रिमूव कर दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, अब वो बिल्कुल एक बिना घर का एक ऐसा यू कैन से आवारा आदमी टाइप में हो गया, बिकॉज वो यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था, बिकॉज उसके पास कोई घर नहीं था। विदाउट क्लोथ्स, उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। विदाउट मनी, कोई पैसा नहीं, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, अब उसका कोई पता नहीं लगा सकता था क्योंकि ना उसने कपड़े पहने थे, वो बिल्कुल इनविजिबल था, और जब तक कि वो मड में ना चला जाए या फिर ऐसी कोई चीज़ जो प्रिंट्स दे सके उसके, तब तक कोई उसका पता नहीं लगा सकता था। ही एस्केप्ड इजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, अब वो
वहाँ से तो उन 2 लड़कों से तो वो ईज़िली एस्केप हो गया। बट यहाँ नहीं, इससे ज़्यादा शुरुआत होती है। अब क्या था कि जहाँ उसके फुटप्रिंट्स जा रहे थे, वो हमें पता चलता है कि वो इस तरीके से लंदन में क्यों घूम रहा था, क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड्स के हाउस को क्या लगा दिया था, आग लगा दी थी ना। उसके बाद वो बिल्कुल बेयर फुट, बेयर बॉडी, वो बिल्कुल एक कीचड़ में से निकल रहा था। तो उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो 2 बच्चों को दिखाई दिए और वो उसको फॉलो करने लगे। अब किसी तरीके से उसने उन बच्चों को से तो छुटकारा पा लिया, बट हिज एडवेंचर वॉज बाई नो मीन ओवर। अभी तक उसके जो एडवेंचर्स थे बीइंग ए इंडिविजुअल पर्सन, वो अभी ओवर नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। उसने सबसे बुरा टाइम चूज किया था कि वो इनविजिबल हो जाएगा और लंदन में बिना क्लॉथ्स के घूम सकेगा, क्योंकि ये टाइम था काफ़ी विंटर का, जनवरी का। सो जनवरी में यू कैन नॉट सपोज योर सेल्फ टू बी विदाउट क्लॉथ। सो इट वॉज मिड विंटर, अभी तो मिड विंटर है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत कड़क ठंड पड़ी हुई है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा बिना क्लॉथ्स के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द बिग लिनन स्टोर फॉर वार्मथ। अब वो किसी स्टोर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ट्रेंड्स हैं, वैसे ही वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं। तो वो स्ट्रीट्स में जाने के बजाय, वो इनविजिबल तो है ही, वो किसी भी दुकान में घुस सकता है, तो वो एक स्टोर में चला जाता है, लंदन स्टोर में, थोड़ी गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब क्लोज होने का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है। एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब उसको खाने के, पहनने के, ओढ़ने के सारे चीज़ें मिल गई थी। अब उनको उसका खर्चा भी नहीं देना था, एक्सपेंस भी नहीं देना था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने सारे ओपन बॉक्सेस को खोल दिया, रैपर्स को खोल दिया, जो भी उसको फिट आया, जो भी वार्म क्लॉथ थे उसने पहन लिए। राइट, soon with shoes and overcoat and a white brimmed that hat, उसने एक हैट ली, उसने क्लॉथ्स लिए, और एंड ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड इनविजिबल पर्सन। लेकिन वो फुली ड्रेस था, बट वो कैसा था, यू कैन से इनविजिबल पर्सन था, लेकिन वो विजिबल हो रहा था थ्रू आउट द क्लॉथ्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉथ्स। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब साथ में कुछ खाने का भी था स्टोर में। स्टोर उसे जैसे ही वो कुछ खाने का मिला, तो वहाँ था कॉफ़ी एंड कोल्ड मीट, तो उसने वो खा लिया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स, उसके बाद कुछ स्वीट्स भी रखी हुई थी, उसने मील के साथ वो स्वीट्स भी ली। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स, उसने थोड़ी वाइन भी ले ली, बिकॉज वाइन इज सच ए काइंड ऑफ थिंग which was just taken by a particular person because of cold outside, and especially in the foreign countries everyone is addicted to this. And finally he settled down to sleep on a pile of quilt। अब लास्ट में वो सारे कपड़े पहन के गर्म होके खाना खा के वो क्विल्स पे लेट जाता है, जो वहाँ पर गद्दे रखे हुए थे वो उन पर लेट जाता है। इफ़ ओनली ग्रीफन हैज़ मैनेज टू वॉक अप इन द गुड टाइम एट ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ये अच्छा होता अगर ग्रीफिन जल्दी से उठ जाता तो, क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे स्टोर खुला सुबह, वो उस टाइम पे उठ नहीं पाया। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो असिस्टेंट थे, जो वहाँ नौकरी करते थे, वहाँ वो पहुँच जाते हैं और वो उसको देख लेते हैं कि वो इस कपड़ों में वहाँ कोई है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run। अब उनको लगा कि जैसे उनको तो ये लग रहा था कि कुछ कपड़े पड़े हैं, बट मेन क्या था, उसको लग रहा था कि ये मेरी तरफ भागे हुए आ रहे हैं, शायद ये मुझे पहचान गए हैं। तो पैनिक हो जाता, डर जाता और वो भागने लग जाता है। They naturally gave chase. In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। अब वो उसको पता है ही, अगर वो क्लॉथ में भागेगा तो लोग उसका पीछा करेंगे और पकड़ा भी जाएगा। लेकिन वो एकदम क्या करता है कि करके अपने से जो न्यूली कपड़े हैं, जो अभी उसने पहने ही थे कल रात को, वो एक एक करके निकालने लग जाता है। देखिए यहाँ पे वो पहले हेड फेंक रहा है इस पिक्चर में, धीरे धीरे अपना कोट निकाल रहा है, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें निकाल देता है। सो मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब वो अपने आप को बिल्कुल नेक्ड कर देता है, और बिल्कुल इनविजिबल तो है ही, और वो बहुत चिलिंग आउटसाइड कोल्ड है, काफ़ी ब्रीज है। सो जनवरी का यू कैन से मंथ है,
This time he decided to try the stocks of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but something would hide the empty space above the shoulders. Above the shoulders means उसके neck, face सब कुछ cover कर दे. वो ऐसी जगह गया जहाँ थिएटर्स होते थे, यानी ड्रामास प्ले किए जाते थे, वहाँ थिएट्रिकल कंपनीज थी, क्योंकि थिएट्रिकल कंपनीज के पास बहुत सारी ड्रेसेस होती है, राइट. तो उन ड्रेसेस में से उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा उसके लिए, जिससे वो अपने शोल्डर के ऊपर वाला स्पेस जो है वो भी ढक सके, बिकॉज बहुत सर्दी है, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग भी रही है. शिवरिंग विद कोल्ड ही हर्टेड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब वो कहाँ जाता है, एकदम से वो ड्ररी लेन जाता है, बिल्कुल थिएटर वर्ल्ड के बीच में, right. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and come out a little wearing bandage around his forehead. और जैसे ही उनमें से किसी एक सुटेबल शॉप पे जाता है और वहाँ पर अपने लिए कुछ बैंडेज जो उसके फोरहेड को, उसकी यू कैन से ग्लास नॉट खरीदता, बट वो वहाँ से ले लेता है, एक फॉल्स नोज़ खरीद लेता है और कुछ बड़ी बड़ी मुस्टैचेस खरीद लेता है, एक लार्ज हेड खरीद लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए. जो बैंडेजेस हैं वो इसलिए खरीदता है ताकि वो अपने मुंह पे इसे बांध ले और कोई पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो ये बात बोल सके दैट इट मे बी डैमेज इन द एक्सीडेंट, राइट. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, वो किसी से बिना दिखे, यानी कि वो दिखना नहीं चाहता था, किसी की नज़रों में आना नहीं चाहता था. ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. वो जैसे जिस शॉप में वो सारी चीज़ें लेके गया, अगर वो बाहर लेकर आता ऑब्वियसली वो पकड़ा जाता, तो वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है. आफ्टर विच ही ड्रॉप्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. अब उसने उस दुकानदार को भी लूट लिया, राइट. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन. अब वो इस क्राउडेड लंदन से बाहर जाने की इतनी उत्सुकता से ही गॉट अ ट्रेन टू द विल टू एपिंग. वो एपिंग नाम के एक गाँव में ट्रेन ले लेता है, कर लेता है, मीन्स वो वहाँ की टिकट खरीद लेता है. वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. वो वहाँ पे 2 रूम जो है वो लोकल इन में यू कैन से बुक करता है. द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट द इन विंटर वॉज इन केस एन अनयूजल इवेंट. अब क्या था, जो इस एरिया में, ईपिंग एरिया में विंटर्स में कोई भी नहीं आता, स्पेशली स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल भी नहीं आते थे. तो ये उस यू कैन से वहाँ के रहने वाले, यानी वहाँ के लैंडलॉर्ड्स लगा लीजिए या फिर वहाँ के मैनेजर्स या अदर जो भी वहाँ काम करने वाले थे, उनके लिए एक स्ट्रेंजर इवेंट था. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल द टग वेगिंग. इट मीन्स हर किसी के ज़ुबान पे उसके अजीब से अपीयरेंस की बात चल रही थी, वो किस तरीके से दिखता है और वो किस तरीके का इंसान है. मिसेस हॉल. मिसेस हॉल कौन थी, उस छोटी सी इन, यानी कि उस सराय, उस होटल की यू कैन से वन ऑफ द मालिक कह सकते हो, बट वो वाइफ थी उस लैंडलॉर्ड की जिसका वो इन था. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब उसने सारे एफर्ट किए कि वो ग्रिफिन के साथ थोड़ी फ्रेंडली हो जाए, उससे बात करके पता लगा सके कि वो है क्या. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. बट ग्रिफिन उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो उससे बातें करेगा तो कुछ ना कुछ बातें उगल जाएंगी और वो उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेगी, और जैसे ही वो उसके बारे में पता लगा लेगी तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी. तो उसने उससे कहा, माई रीज़न फॉर बिकमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल एकांतवास चाहिए. सॉलिट्यूड मीन्स होता है आइसोलेशन. वो आइसोलेशन में जीना चाहता है, एकांतवास में जीना चाहता है, अकेलेपन में जीना चाहता है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे वर्क में. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ फेस माई अफेक्टेड माई फेस. अब जैसे कि कोई उसके फेस पे जो लगी बैंडेज है उससे पूछता कि तुम्हें क्या हो, उससे पहले ही वो बता देता है कि मेरे फेस पे इंजरीज हैं बहुत सारी, जो किसकी वजह से आई है, एक एक्सीडेंट की वजह से. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. अब उसको ये पता चल गया है कि उसका जो गेस्ट है वो एक पागल, सन की जिसे हम कहते हैं सेंट्रिक, जो है सेंट्रिक होता है सन की, एक साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. अब बस वो उसको एडवांस में पे कर रहा है हर एक मंथ के लिए, तो मिसेस हॉल भी उसको एक्सक्यूज़ ना देते हुए अपने टेम्पर को संभालती है, उसको जो रूम है वो दे देती हैं. बट ही स्टोल मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. अब जो उसने चुराया हुआ था शॉपकीपर को हिट करके, वो ज़्यादा दिन तो मनी नहीं चलने वाला था. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब उसने बता दिया कि अभी मेरे पास कोई कैश नहीं है, और बट उसने प्रिटेंड किया, यानी कि उसने दूसरों के सामने
बहाना बनाया कि however he was expecting a check to arrive at any moment। वो कह रहा था कि मेरे पास एक चेक आने वाला, वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो अब यहाँ पे ग्रिफिन ने उन सभी को बाय गिविंग द हार्ड कैश इन एडवांस, तो उन सभी को मुंह तो चुप कर देता है, बट जो लोगों के अंदर सवाल ये कैसे क्वेश्चन राइज हो रहे थे, उनको वो चुप नहीं करा पा रहा था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। तभी एक इतना ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो ही रही थी कि तभी एक और चीज़ अनएक्सपेक्टेड हुई कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी 3-4 बजे के टाइम पे क्लर्जीमैन होता है जो चर्च में पादरी होते हैं, एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेज इन द स्टडी। और वो स्टडी रूम था उनका, उसमें कुछ नॉइजेज आ रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स दे हेयर द चिंग ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब वहाँ से वो डाउन स्टेयर की तरफ जाते हैं, वहाँ से सुनते हैं कि यानी कि जैसे छनकार होती है सिक्कों की, पैसों की चिंग्स होती हैं, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी किसके ड्रॉर में से, क्लर्जीमैन के ड्रॉर में से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रैब्स, पॉकर इज अ काइंड ऑफ यू कैन से stick which was just you can say just like a pen from the one side, so it has sharp edges, right? So here वो अपनी जो पॉकर है उससे वो बड़े हल्के से उस दरवाजे को खोलता है बिना आवाज़ किए, और जैसे ही वो उसको खोलता है तो वो कहता है सरेंडर, तुम अपने हाथ ऊपर करो, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। देन टू हिज अमेजमेंट, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, ही रियलाइज दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी, बट वहाँ तो कोई है ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के अंदर नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी के अंदर देखा, बट वहाँ कोई नहीं था। यट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, बल्कि जो डेस्क था वो ओपन था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जो अपने घरेलू खर्च के लिए जो भी पैसे जुटा रहे थे वो सारे के सारे मिस हो गए थे। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। अब क्लर्जीमैन कहता है ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे पूरे दिन में कोई ना आया हो जब भी ऐसी घटनाएं घट गई हो। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। उसी दिन यू कैन से थोड़ी देर बाद उसी मॉर्निंग में मिसेज हॉल के साथ जो हुआ था उसके फर्नीचर के साथ वो और भी ज़्यादा अजीब था। अब वो क्या होता है सुनिए, ये कहते